Okay, so yesterday we have discussed about OSI layers and then IP version 4 addressing. Today I'll take subnetting and supernetting concepts. Some practical, some examples I will take, like some problems we'll take and we'll try to solve those problems to better understanding the participant. So yesterday, as we have discussed that IP version 4 that is classified in some classes. Okay, so as we discussed yesterday that IP version 4 classified in some classes like A, B, C, D, E, where ABC used for unicast communication, D used for multicasting purpose, and E is reserved for experimental use. But we found some problem in that the networks which we created in those classes, those networks are large, their size is large, and when we allocate those network to any organization and their organization demand is less, generally demand is less, in that case wastage of IP will be there. And as we know that IP version 4 are limited in number, IP version 4 constraint is there, they are less in number, constraint is there, we cannot allocate in such a way that wastage should be there, so that we have to minimize the wastage. So what is the solution for that? For that, subnetting concept came into the picture. Subnetting means chopping of a network into a number of smaller networks, simply dividing bigger network into the smaller network so that we can allocate smaller size network to the users and we can minimize the wastage of IP addresses, or you can say in that way we can efficiently utilize the available IP addresses. So what to do in that case? Subnetting. In the subnetting network, before subnetting we divided 32-bit. 32-bit is there in IP version 4. So 32-bit divided into network and host. Few bits we allocated to network and few to host. But here for subnetting purpose, network will borrow few bits from host. होस्ट से बोरो करेगा नेटवर्क और सबनेटिंग के लिए उसको यूटिलाइज करेगा. आफ्टर दैट यू कैन से दैट बोरोड बिट विल बिकम द पार्ट ऑफ नेटवर्क. बोरोड बिट के जो होंगी वो नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा. सो सबनेट इज ए रियल नेटवर्क अंडर ए नेटवर्क. देखिए ये तो हमने बात कर लिया एफिशिएंटली यूज द फुल नेटवर्क. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए वी आर यूजिंग द सबनेटिंग कॉन्सेप्ट. देन सबनेट जस्ट सब नेटवर्क बोल रहे हैं इसको, that is equivalent to network. After subnetting it is having the same feature functionality, you can say it's equal to network. हाँ ठीक है, बड़े नेटवर्क को हमने स्मॉलर नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, लेकिन उसके पास भी वो सेम फंक्शनलिटी रहेगी, सेम नेटवर्क के फीचर्स उसमें रहेंगे कि it is equal to network. Any of the classes can be subnetted. Yes, you can subnet A, B, C. Any classes you can subnet. ओके एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी एक सिंगल बिट हम बोरो कर रहे हैं. एनी बिट्स कैन बी बोरोड लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन. बिट्स कैन बी बोरोड. हियर फर्स्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल दैट 1 बिट बोरोड बाय द नेटवर्क. इन दैट केस देखिए केस क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला नेटवर्क है n.n.n.h. ये कौन सा नेटवर्क है? या इस नेटवर्क का हम एक एग्जांपल अगर एग्जैक्टली एग्जांपल लें तो एग्जांपल भी ले सकते हैं. लाइक एग्जैक्टली अगर एग्जांपल भी लेना चाहें हम,
कोई भी क्लास सी ले सकते हैं, लाइक 200.10.20.0/24. दिस इज ए क्लास सी नेटवर्क. ठीक है. सिमिलर जो हमने अभी शो कर रहे थे, दैट इज n.n.n.n.h एंड /24. इट इज इक्वल. यहां भी हम बात करें कि 3 ऑक्टेट, these 3 octets belong to network and last octet belong to host. तो ये इक्वल है यहाँ पे. 3 ऑक्टेट belong to network and last. तो क्लास सी एक एग्जांपल लिया है मैंने. यस्टरडे की क्लास जिन्होंने ली है उनको क्लियर है कि ये क्लास सी नेटवर्क है, बिकॉज 200 simply by checking the first octet you can find its class, or /24 from that also you can find that this is class C network. So इस नेटवर्क में एक सिंगल बिट बोरो कर रहे हैं. ठीक है, सिंगल बिट बोरो. So only adjacent bit can be borrowed. Network cannot borrow any bit. It can borrow only adjacent bit. Like ये जो आपका नेटवर्क है थर्ड ऑक्टेट का adjacent bit only can be borrowed. Like 8 bits with the host, it will borrow single bit and it will borrow adjacent. It is near to the network, obviously. So this bit, exactly how we can represent this bit, either from 0 or 1. Two possibilities are there, either 0 or 1. So if it is 0, first case, you take the first case, then to represent the network address, what we have to do, we have to replace all host bit with 0. नेटवर्क एड्रेस कभी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया कि उस केस में होस्ट बिट को हम 0 से रिप्लेस कर देते, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए हम लोग होस्ट बिट को 1 से रिप्लेस कर देते. तो पहला जैसे केस में ले रहा हूं, फर्स्ट केस हियर 7 bit with the host and these 7 bit I'll replace with 1 and convert. Now this last octet convert into decimal, so we will get 0. So this subnet I'll get n.n.n.0/25. Why I have written here 25? Okay, इसकी बात करेंगे अभी. सेकंड सबनेट की बात करने पहले n.n.n.1, and now to find out the subnet 2 address, again same procedure we have to adopt. Replace all host bit with 0. Then here last octet become 1 and 7 times 0. Convert this value into decimal, it will come 128. So this is our second subnet. So like that, by borrowing the single bit, network can divide into 2 equal smaller subnetworks. Okay, what is the formula? 2 to the power number of bits borrowed. How many subnet will get? 2 to the power number of bits borrowed. So here 1 bit borrow means 2 to the power 1, 2 equal subnets. If we'll borrow 2 bit, then 2 to the power 2, 4 subnetwork can be created. 2 to the power 3, 8 subnetwork, and so on. Like that we can divide into same equal size subnetworks. Okay. Now question arises that here why we return /25? कोई बता सकता है मुझे कि हमने /25 क्यों लिखा है यहाँ पे? The subnetwork, why we have written /25? Please, Shubham, you can type in the chat box. Because we are using a host bit as network bit. Yes, correct. Actually, network borrowed 1 bit. So now before subnetting 24 bits with the network. Now 1 more bit borrowed by the network. So now how many bits with the network? 24 plus 1. Now 25 bits with the network. So here we have to write 25.
always the slash notation means number of bits with the network that we have to write. So here 25 bit with the network. Okay. Classless address, yes, it's also true, sir. It's a classless. Now we are doing subnetting, means we are moving towards classless environment. ठीक है, क्लासेस का हम सब क्लास सबनेटिंग कर रहे हैं. एनी क्लास फुल network we can take and we are doing subnetting of that network. So we are moving towards classless environment. And now /25 network we are getting, that means it's a classless network. Obviously it's a classless network, subnetted network, and subnetted networks are called classless network. Okay. तो अगर हम एक प्रैक्टिकल जो एग्जांपल लिया था उस प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कौन कौन से सबनेट बनेंगे. 200.10.10.0/25, this is the first subnetwork, and second subnetwork is 200.10.20. यहाँ पे so third octet 20, then here also 20.128/25. ये हमारे जो है एक क्लास सी का नेटवर्क लिया and two subnetted networks we go from. Fine. So in that way we can do subnetting. ओके ये देखिए अब सबनेटिंग हम कर रहे हैं. फर्स्ट 1 बिट सबनेटिंग हमने किया. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल वेयर विल डू 8 बिट सबनेटिंग. IP address we are having one IP address 172.16.host 172.16 host. देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये होस्ट बिट है. और अगर कोई सब आपको नेटवर्क एड्रेस डालना है 172.16, देखिए ये केस हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है 172.16.host मीन्स अगर हमें नेटवर्क एड्रेस डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना, तो 00 लेना पड़ेगा ऑब्वियसली. ऑल होस्ट बिट वी हैव टू रिप्लेस विथ 0 to represent the network address, to present the subnetwork address. Okay, so here what I'll put, ये मेरा कौन सी क्लास का एड्रेस है 172.16.0.0. yes it's क्लास बी. शुभम शर्मा आपने सही आंसर किया कि ये क्लास बी का एड्रेस है. तो सबनेट क्या लगाएंगे यहाँ पे, स्लैश नोटेशन क्या आएगा. इफ इट इज क्लास बी network, what I have to put here, slash. I'll put 16. Yes, correct. I'll put 16 because 16 bit with the network. अब देखिए ठीक है, नवीन जी ने मेरा आंसर दिया है 16, रुचि मैडम ने दिया 16. यस करेक्ट, बिल्कुल सही है कि 16 यहाँ पुट करेंगे. अब ये देखिए केस हमारे पास क्या है कि इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, सब लोग जानते हैं /16. First 16 bit replace with how sir. Okay fine. अशोक कुमार जांगड़ी जी पूछ रहे हैं कि ये कैसे है /16. ये आपने कल की क्लास नहीं लिया आई थिंक, इसलिए आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है. /16 क्लास ए जो है, क्लास ए में /8 हम पुट करते हैं. क्लास बी में, एक मिनट थोड़ा सा चलो मैं आपको बता देता हूँ. आपने क्लासेस की यस्टरडे क्लास नहीं ली है इसलिए आपको प्रॉब्लम. देखिए IP वर्जन 4 को 5 क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं, ABCDE. क्लास ए के केस में क्या होता है /8. ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क. ठीक है, तो /8 सबनेट मास्क क्या डिनोट कर रहा है, दैट 8 बिट विद द नेटवर्क. हियर आपके पास टोटल कितनी बिट है 32 बिट है. आउट ऑफ 32 बिट 8 bit with the network, first octet 8 bit with the network, remaining 24 bit with the host. Class B, first 16 bit with the network, last 16 bit with the host. Class C, first 3 octet means first 24 bit with the network and last octet with the host. And class D and class E, it is unspecified. ठीक है, तो इससे हम लोग ले रहे हैं. तो क्लास ए में हाउ मेनी बिट विद द नेटवर्क 8. सो विल पुट हियर /8.
Class B will put /16 because 16 bit with the network, and class C /24 because 24 bit with the network. तो क्लास फुल एनवायरनमेंट में ये सिनारियो होता है। तो यहां पे देखिए आप, कोई भी क्लास ए का मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया क्या आपको, या इसमें बताएं कि स्लैश जगह ये सब 8 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 बिट विद द नेटवर्क। सो इफ टू कन्वर्ट दिस सबनेट मास्क इनटू डेसिमल, we have to replace 8 bit, yani network bit with 1 and host bit with 0, all 24 host bit with 0. Now replace this into decimal, so it will come 255.0. so this is default subnet mask for class A. Similarly for class B, yahan pe 16 hoga, 16 bit replace with 1 and last host 16 host bit replace with 0, convert into decimal, it will come 255.0. सो ये देखिए क्लास बी का मैंने एग्जांपल लिया है, यहां से आप देख सकते हैं। और अगर क्लास सी की मैं बात करूं तो क्लास सी में क्या सिनारियो, /24 दिस इज डिफॉल्ट सबनेट मास्क, रिप्लेस 24 बिट विथ 1, लास्ट 8 बिट विथ 0, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, इट विल कम 255.255.0। ठीक है। आइडेंटिफायर भी हमने देखा था, चलो ये वाला आइडेंटिफायर इतना आपको यूटिलाइज नहीं होगा, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन आइडेंटिफायर में आप इतना सा ध्यान रख लें, क्लासेस आइडेंटिफाई जब करना है तो यू रिमेंबर दीज। फर्स्ट ऑक्टेट, कोई भी आपको एड्रेस दिया हुआ है वो आपको 4 ऑक्टेट में देंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, डोटेड डेसिमल में रिप्रेजेंट। आईपी वर्जन 4 represents in dotted decimal notation where 32 bit will divide into 4 octets, 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit 4 octet, and each octet will convert into decimal and separate with dot. This is the way to represent the IP version 4 address. So how to find out the class, how to identify the class of that given address? For that you have to check the first octet. Only first octet you check. Out of 4 octet, first octet means leftmost octet, and this is the range of the octet. If that range in 0 to 127 belong to class A, if it is 128 to 191 class B, and so on. ये जो range है ये आप देखिए। अब मैंने एक एग्जांपल जो लिया है, ये एग्जांपल देखिए क्या लिया है मैंने, 172.16.0.0. so it belong to which class, 172. only you have to check 172, check कौन सी रेंज में 172, it is in the range of this 128 to 191, so it belong to class B. ठीक है, क्लियर है? ओके, अशोक कुमार जहांगीर सर, सो इट्स क्लियर टू यू, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8 बिट हम सबनेटिंग की बात करें तो 8 बिट सबनेटिंग जहां पे 16 बिट आपके नेटवर्क के पास है, 16 बिट होस्ट के पास है, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क will be 255.255.0.0. This is the default subnet mask for class B, as you all are aware about it. Now network will borrow 8 bit from here, from host. It will borrow all the 8 bits. It will not borrow going to borrow one single bit, 2 bit. It will borrow 8 bit. Okay, so 8 bit अगर इसने बोरो कर लिया तो अब सबनेट मास्क क्या जाएगा, म्यूट करें अपने आप को, कुछ अनम्यूट हो गए पार्टिसिपेंट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। सो सर्वेश श्रीमाली सर, सर्वेश सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।
ओके, सो 8 बिट सबनेट, 8 बिट बोरो किया, तो अभी कितनी बिट 8 बिट सबनेटिंग किया, तो दिस थर्ड ऑक्टेट, जो थर्ड ऑक्टेट होस्ट के पास था, ये अब किसके पास चला गया, नेटवर्क के पास। एंड नाउ स्लैश नोटेशन क्या होगा, स्लैश 24, बिकॉज 16 plus 8, now 24 bit with the network and only 8 bit with the host. तो इस तरीके से सबनेटिंग करेंगे। नाउ हाउ मेनी सब नेटवर्क विल गेट फ्रॉम this, in this scenario, how many sub networks will get? This is the question. Sir, why we, okay, एक क्वेश्चन है, ठीक है, पूछते हैं, मैं इसका आंसर करता हूँ शुभम। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 8 बिट बोरो किया, हाउ मेनी सब नेटवर्क विल गोइंग टू क्रिएट, वी आर गोइंग टू क्रिएट हाउ मेनी सब नेटवर्क फ्रॉम दिस, नंबर ऑफ सब नेटवर्क, जो हमारा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सब नेटवर्क, नंबर ऑफ सब नेटवर्क इक्वल टू 2 to the power, 2 to the power, जो हम बिट बोरो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 8 बिट बोरो किया, नवीन सर ने 256 आंसर किया, यस सर, यू आर राइट सर। सो 2 to the power 8 मींस 256 सब नेटवर्क विल गेट, ठीक है नवीन सर, अनिल सर। ओ -2, ओ -2, इस केस में सब नेटवर्क केस में -2 यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं हम लोग, हाँ कुछ केसेस में हम लगाते हैं जीरो सब नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट सब नेटवर्क को समटाइम्स भी माइनस इट क्लास, इनिशियली हम लोग करते थे, बट एज ऑन डेट ये हम लोग नहीं करते हैं कि जीरो सब नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट सब नेटवर्क को हम माइनस नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई we'll get 256 सब नेटवर्क एंड एग्जैक्टली वी कैन यूटिलाइज दो सब नेटवर्क। -2 हम लोग क्या करते हैं कि उस नेटवर्क जो आपका सब नेटवर्क है, इन ईच सब नेटवर्क हम लोग जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अचीव करेंगे, जो मिलेंगे हमें, उसमें माइनस करेंगे, व्हाई, बिकॉज वन आईडी बिलोंग टू सब नेटवर्क एंड अनदर आईडी बिलोंग टू ब्रॉडकास्ट, इन दैट केस विल -2, अदरवाइज फॉर नंबर ऑफ सब नेटवर्क इट विल बी एग्जैक्टली 256, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रेज हुआ है, सर व्हाई वी डूइंग 8 बिट सबनेटिंग class B, it becomes class C after subnet. No, 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 nothing like that. Shubham Sharma, class C means /24, ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, /24 means class C, बट 8, अगर क्लास B को आपने 8 बिट सबनेटिंग किया, इट विल नॉट बिकम क्लास C, क्योंकि क्लास C, अच्छा एक बात बताइए कि मैंने सबनेटिंग कर दिया इसको, और यहाँ मैं एक एग्जांपल से चलो बता रहा हूँ आपको, मैंने एंटायर ये वाला लिया, तो यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क मिले, जैसे एक सब नेटवर्क की बात करें, सब नेटवर्क, ये एक मेरे को सब नेटवर्क मिल रहा है। सुबह मैं आपकी बात का आंसर कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि 256 कौन कौन से सब नेटवर्क क्रिएट होंगे इससे। देखिए थर्ड ऑक्टेट में सबनेटिंग कर रहे हैं हम लोग, वेयर वी आर डूइंग सबनेटिंग, वी आर डूइंग सबनेटिंग इन थर्ड ऑक्टेट, ओके। Yes sir, Anil sir, you are right sir, default and broadcasting address will never be allocated, you are right, but here I am asking number of sub networks, here I am asking number of groups, network means sub network means a group, एक अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने ग्रुप क्रिएट करेंगे हम, या ये मान के चलिए हम कितने बैच क्रिएट कर रहे हैं, कितने सेक्शन बना रहे हैं। हाँ, कोई सेक्शन आपने बनाया, उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पहला नंबर और लास्ट नंबर, उस ग्रुप का पहला नंबर और लास्ट नंबर हम लोग एलोकेट नहीं करते हैं, क्योंकि पहला नंबर उस ग्रुप का आईडी होता है और लास्ट नंबर उस ग्रुप के लिए ब्रॉडकास्ट। मैं नंबर कितने ग्रुप क्रिएट हुए उनकी बात कर रहा हूं, उस ग्रुप के अंदर माइनस हम 2 कब करते हैं, उस ग्रुप के अंदर 2 आईडी को हम माइनस करते हैं, ठीक है सर, इज इट क्लियर सर, अनिल कुमार सर। दो चीजें हैं सर, समझिए, एक ग्रुप है
एक तो कितने ग्रुप क्रिएट किए हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कितने ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, हम कितने सेक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ हम 256 सेक्शन बनाएंगे सर, और हर एक ग्रुप की साइज क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में बताऊं तो उस पर्टिकुलर केस में उस हर एक सेक्शन की साइज भी 256 ही है, क्योंकि होस्ट के पास कितने बिट है, यहाँ पे देखिए आप, होस्ट के पास कितने बिट है, यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट है वो होस्ट के पास है। इन दैट केस साइज ऑफ सब नेटवर्क आल्सो विल बी सेम 256। इन दैट केस वी हैव टू -2 उस एक सेक्शन की साइज। हमने इस केस में क्या किया, 256 256 हमने सेक्शन बनाए, हमने ग्रुप क्रिएट कर दिए 256। ठीक है, उन 256 सेक्शन में से हर एक सेक्शन की साइज क्या है, इस हर एक सेक्शन की साइज भी यहाँ 256 है। नाउ हर एक सेक्शन में से हमें 2 माइनस करना है, सारे नंबर ऑफ ग्रुप 256 आए उनमें -2 नहीं करना है, हर एक सेक्शन में से -2 करना। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब हाँ, शुभम में से कुछ क्वेश्चन किया था, ये सब नेटवर्क 1 है मिस्टर शुभम, दिस इज सब नेटवर्क 1, क्योंकि थर्ड ऑक्टेट में हम लोग सबनेटिंग कर रहे हैं, और कितने सबनेट बनाएंगे हम 256। तो सबनेट 2 कौन सा बनेगा, सब नेटवर्क 2। थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कितने कौन कौन सब नेटवर्क आप बना रहे हैं। सब नेटवर्क 2 बनेगा, यहाँ पे देखिए 1 थर्ड ऑक्टेट में 1 0/24, दिस इज सब नेटवर्क 2 एंड सो ऑन, यही चलता जाएगा 1 2 3 थर्ड ऑक्टेट में, एंड इट विल गो अप टू लास्ट ऑक्टेट। लास्ट आपका सबनेट क्या होगा, सबनेट 256 की बात करूं मैं, सब नेटवर्क 256 क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 255। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपके 256 टोटल सब नेटवर्क्स बने। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि ये क्लास सी का क्यों नहीं हुआ, ये सारे के सारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे क्लास सी के हो गए, फिर क्लास बी से कन्वर्टेड इनटू क्लास सी। लेकिन क्लास सी का डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था आपको, क्लास सी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट यू हैव टू चेक व्हाट विल बी द रेंज फॉर क्लास सी। शुभम आप ही बताइए क्लास सी का रेंज क्या होगी फर्स्ट ऑक्टेट का। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको, वन 192। हाँ तो ये क्या 192 223 में आ रहा है, अगर ये 192 223 में नहीं आ रहा तो इसको आप सी कैसे बोल सकते हैं। इट इज नॉट इन क्लास सी सर, इट इज क्लास बी सबनेटेड, it is class B sub network, exactly what you will say, it is class B sub network, got it? Okay, class C first octet start from 192 to 223, yes Naveen sir you are right, Ashok sir you also right। so ये क्योंकि क्लास B को हमने सब नेटवर्क, कोई भी जो नेटवर्किंग आप सीख गए एक बार, if you are aware about subnetting, supernetting, all these concepts, so by seeing it clearly you can say that this is a class B subnetwork, एग्जैक्टली यू कैन से कि क्लास बी को सब नेटवर्क किया है, क्योंकि आपको ये पता है 172 फॉल इन क्लास बी, और 24 ये 16 से ज्यादा है, क्योंकि क्लास बी में कितना होता है 16। सो एग्जैक्टली यू कैन से दिस इज क्लास बी सब नेटवर्क। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग सब नेटवर्क 256 सब नेटवर्क वी कैन क्रिएट। अच्छा, एक जैसे सर ने बात करी अनिल कुमार शर्मा सर ने कि हम -2 कर रहे हैं, तो ये एक सब नेटवर्क 256 ग्रुप्स क्रिएट हुए, कोई भी ग्रुप उठा लें, मान लीजिए मैं ग्रुप 2 उठा लेता हूं, सब नेटवर्क 2, आई एम टेकिंग दिस सब नेटवर्क 2। अब इस सब नेटवर्क में ये एक सब नेटवर्क